वेलकम एवरीवन। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। वेलकम टू आवर बेसिक डिसाइपलशिप क्लासेस। और आज हमारे जो बेसिक डिसाइपलशिप की जो शिक्षा है उसमें आपका So स्वागत last time we have means the covered we have made the single video है। और पिछले समय में हमने एक सिंगल वीडियो बनाया था of each topic about judgment, water baptism, right? What you और should do after salvation. और न्याय के विषय में और वाटर पानी के बपतिस्मे के विषय में और हमारे उद्धार के बाद हमें जो चीजें करनी है उसके विषय में हमने एक वीडियो बनाया Right? I have made one English video and Marathi video like था। और this. मैंने जो है एक इंग्लिश वीडियो और एक मराठी वीडियो ऐसे But बनाया now था। onwards we'll have one video, English and Hindi together. पर अभी से जो है हम एक ही वीडियो बनाएंगे और उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। So the basic discipleship topic in that we are going to see today, second coming of Jesus Christ. और बेसिक डिसाइपलशिप उसकी जो शिक्षा है उसके अंदर जो है हम यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के विषय में आज देखेंगे। Right, second coming of Jesus Christ. The second coming of Jesus Christ is divided into two parts. और प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो दूसरा आगमन है वो दो भागों में विभाजित किया गया One is है। rapture and the other is revelation. और पहला जो है वो रैप्चर है और वो दूसरा जो है वो रेवलेशन है। Right. So there is lot of confusion regarding the second coming of Jesus Christ. और यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के विषय को लेकर बहुत सारे गलतफहमियां हैं। So do you know when he is coming? तो आपको पता है वो कब आने वाला है? Anyone has a date? किसी के पास वो तारीख है? Right. We'll see what the Bible says. और Turn हम with देखेंगे me. कि वचन क्या कहता See है what are we expected? और हमारी उम्मीदें क्या है। Right. What you as a born again believer should expect. और हम जो नए सिरे से जन्मे मसीह लोग हैं हमारी कुछ उम्मीदें होनी If चाहिए। you turn with me to book of Mark, अगर आप मेरे साथ खोलिएगा मरकुस की पुस्तक Mark chapter 13. Mark chapter 13 and verse 32. मरकुस उसका 13 अध्याय और 32 वचन। 32. See what's here written. 32. But of that day and that hour no man knoweth, no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। So Bible is clear that no one knows. और वचन सीधे तौर पे बताता है कि किसी को भी वो पता नहीं है। Many have tried to find out the date of his coming, और बहुत से लोगों ने जो है उसके आने की जो तारीख है उसे ढूंढने का प्रयास किया है, but have failed. पर वो नहीं पता कर पाए। So we'll understand what we are exactly expected then. तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि हम किस बात की उम्मीद लगा What we रहे should हैं have hope और वो हमारी जो आशा है वो क्या होनी चाहिए regarding the second coming of Jesus. और प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के विषय में। Okay, we'll pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace as we are going to continue through our basic discipleship classes. For Lord, I pray that we are going to discuss today regarding the second coming of Jesus Christ. Help us, O Lord, to rightly divide your word. Understand, O Lord, regarding the second coming, O Lord, in a brief, in a concise way, O Lord. Yes, Lord. I pray that you open our understanding by your scriptures. In Jesus' name I pray. Okay. So Mark chapter 13 verse 32, what it says that no man knows, nor the angel, nor Jesus was also not knowing when he was coming. और मरकुस उसके 13 अध्याय और 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। So no one knows. कोई भी नहीं जानता। No angel knows. और कोई भी दूत नहीं जानता। No man knows. कोई भी मनुष्य नहीं जानता। And when Jesus was on earth, he also didn't know. He said that when he was going to come. और जब प्रभु यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी पर थे तब उन्हें भी नहीं पता था कि वो कब आने वाले हैं। So why this so? Why this और ये इस प्रकार से क्यों है? When Jesus came, the first coming of Jesus Christ. और जो प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ था, he was a human. और वो मनुष्य था। Right. So human with humanity we have some limitation. और वो मनुष्य था और मनुष्यत्व के साथ कुछ सीमाएं होती है। Like how we get tired, how we get weak, how we get hunger. Same Jesus Christ also was. और हम जिस प्रकार से हम थक जाते हैं, जिस प्रकार से हमें भूख लगती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। So Jesus Christ came in Old Testament. और प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन था वो पुराने नियम में हुआ। This is the first coming of Jesus. वो प्रभु यीशु का पहला आगमन था। Right, and he died for our sins. और वो हमारे पापों के लिए मारा गया। He was buried. और वो गाड़ा गया। And he rose again from the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। What is that? 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. That is our gospel. और पहला कुरिन्थियों 15 उसका 1 से जो 4 तक है वो हमारा सुसमाचार है। Right. So we are now here in this church age. और हम जो है हम इस कलीसिया के युग में है।
right now, and at that last moment we are sitting here. और वो अंत के समय में हम ये आखिरी समय में यहाँ पर बैठे हैं। And what is going to happen और in क्या होने future? वाला है भविष्य में? That soon we are going to take out of this world. और जल्दी जो है हम इस संसार से जो है उठा लिए जाने वाले That is हैं called rapture. और उसे रैप्चर कहते हैं। And when we are gone up, और जब हम ऊपर जाएंगे down there will be a 7 years period of tribulation. तो नीचे जो है वो 7 वर्षों का एक महासंकट का समय And होगा after tribulation, और वो महासंकट के समय के बाद then there will be a second coming of Jesus Christ. और उसके बाद जो है यीशु ख्रिस्त का दूसरा आगमन So होगा। we see first coming was here और हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त का पहला आगमन यहाँ पर and था second coming is here. और दूसरा जो आगमन है वो यहाँ पर है। But before second coming of Jesus Christ, परंतु दूसरे आगमन के पहले there will be a rapture. उसके पहले जो है वो रैप्चर होगा। So who are going to get raptured? और तो किन लोगों का जो है वो रैप्चर होगा? Those who are born again, जो जिन्होंने नए सिरे से वो जन्मे मसीह है those who have trusted the gospel. और जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है। What is the gospel? 1 Corinthians 15. और सुसमाचार क्या है? तो पहला कुरिन्थियों का 15 That Christ अध्याय died for our sins, he was buried and he rose again from कि the ख्रिस्त dead. मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन फिर से जी And उठा। after second coming of Jesus Christ, और यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के बाद here there will be a battle. और वहां पर जो है वो युद्ध होने वाला है And then there will be 1,000 years reign of Jesus Christ. और उसके बाद जो है वो 1000 वर्षों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त वहां पर राज्य करने वाला है Jesus Christ will be on earth ruling the earth. और प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद इस पृथ्वी पर होंगे और वो यहाँ पर राज्य करेंगे And the earth will be destroyed. और उसके बाद जो है वो जो ये पृथ्वी है उसको नष्ट की जाएगी And then the eternity will move on towards eternity. और उसके बाद जो है वो अनंत काल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। So this is all in short what I am saying about the second coming of Jesus Christ. और ये जो है ये संक्षिप्त में जो है ये यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के विषय में मैंने आपको So बताया many people what they do, they try to find out the date of second coming of और Jesus. बहुत से लोग क्या करते हैं तो वो यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन की जो तारीख है उसे ढूंढने का प्रयास See, करते if हैं। you find the date of second coming of Jesus Christ, अगर आप यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन की तारीख अगर ढूंढते हो right? If you find that this is some year, और वो अगर आप इस बात को सोचते हो कि वो यहाँ पर होगी means some year. कि वो सालों बाद होगी Right now it is 2026, और अभी जो है 2026 चालू है right? 2026 plus 7, how much? 2032, 33 right? 33. Sorry. So if someone says that through the scriptures you're finding out the date and says someone means Jesus Christ will come in 2033, अगर कोई वचनों का अध्ययन करता है और वचनों से वो निकाल कर इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो आगमन है वो 2033 में होगा then you minus 7 years. तो उसमें से जो है वो 7 वर्षों को हमें कम करना And है। if you minus these 7 years, what you will get? 2026. अगर वो 2033 सालों से अगर हम 7 साल कम करते हैं तो 2026 आएगा। So this year might be a rapture. तो ये जो साल है, ये जो वर्ष है, ये वर्ष में रैप्चर हो So सकता this है। is how a rapture you can find out. तो इस प्रकार से जो है रैप्चर को हम ढूंढ सकते हैं। But to find out that year, 2033, पर वो 2033 साल जो है उसे ढूंढने के लिए many have tried and many have failed. और बहुत से लोगों ने उसका प्रयास किया है और बहुत से लोग उसमें हार गए हैं। So as a Christian, और एक मसीह होने के नाते what are you expected? What means what we are to expect? और हमें जो है हमें किस बात की उम्मीद रखना है? Are we to expect the date and hour, क्या हमें वो तारीख और वो समय को ढूंढना है or are we expected to be ready? और क्या हमें वो तैयार रहने के लिए हमें So we are तैयार not रहना है? expected for hour and date. और हम जो है हम वो घंटे की और वो तारीख की जो है वो हमें उम्मीद नहीं लगाना Right? है So we are not expected that. और हम वो उसकी उम्मीद नहीं लगाना We है are expected to be ready. और हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए कि हम तैयार होने चाहिए So you should be ready for his coming. और उसके आगमन के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। So from that angle we are going to look today the second coming of और Jesus. उस एंगल से जो है आज हम यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के विषय में देखेंगे। Right? Because to find out the exact year, it's not possible. और क्योंकि जो एग्जैक्ट साल है वो उसे ढूंढना जो है वो हमारे लिए संभव नहीं है। But once we are raptured, the people those are in the tribulation will know when there will be the second coming of Jesus Christ. और Because जब हमारा obviously after 7 years. और जब हमारा रैप्चर होगा और जो लोग महासंकट में होंगे तब उन्हें पता लगेगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का दूसरा आगमन कब होगा। So there are names of second coming of Jesus Christ. और जो यीशु ख्रिस्त का जो दूसरा आगमन है उसके कुछ नाम हैं। If you open 1 Thessalonians chapter 5,
what the Paul says about this. First Thessalonians chapter 5 verse 1 पहला थिस्सलुनीकियों chapter 5वां अध्याय 5 पहला वचन। and verse 1. What's पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, hmm. क्योंकि Verse 2. क्योंकि तुम ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। What is Paul saying in verse 1? But of the times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। Verse 2 says, For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। Right? So, how is the day of the Lord? तो प्रभु का जो दिन है वो कैसा होगा? As a thief in the night. जिस प्रकार से चोर रात को आता है। Tell me something. If thief, do you know when your thief is going to come at your home? क्या आपको पता है कि आपके घर में चोर कब आने वाला है? If you know that at 1 o'clock the thief is coming at your अगर home, आपको ये पता है कि 1 बजे चोर आने वाला है, what you will do? तो आप क्या करोगे? You will get ready. तो हम तैयार रहेंगे, Right? You will be standing at the door watching. और हम दरवाजे पर खड़े रहेंगे और देखेंगे। Same way, if God told you the exact time, और इसी प्रकार से अगर परमेश्वर एग्जैक्ट टाइम हमें बताते हैं, you know what Christians will do? तो क्या आपको पता है कि मसीह लोग क्या करेंगे? Suppose he is coming at 12 o'clock, अगर वो 12 बजे आने वाला है, the entire day they will live a backslidden life. तो पूरा दिन जो है वो एक बैकस्लिडन जीवन को जिएंगे, And right at the 1 hour before they will get holy. और वो 1 घंटे के पहले वो जो है वो पवित्र बन जाएंगे। Right? So Bible doesn't say about the exact date and hour. और इसीलिए जो वचन जो है वो एग्जैक्ट उस समय को और वो तारीख को नहीं बताता। How thief comes, you cannot tell. और किस प्रकार से चोर आता है ये हमें नहीं पता। And also in verse, you can go read on verse 3. For when they say peace and safety, then sudden destruction cometh, as travel upon a woman with child, and they shall not escape. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। See, just as thief, when he will come, you cannot tell. और जिस प्रकार से चोर जब आता है, चोर कब आएगा ये हम नहीं बता सकते, Right? He can come anytime. वो कभी भी आ सकता है। What you should do, you should be ready. तो आपको क्या करने की जरूरत है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। Same way, labor pains. और इसी प्रकार से जो गर्भवती का जो पीड़ा होती है, Right? The pains you cannot tell when it will come. और वो ये हम नहीं बता सकते कि वो जो दर्द है वो कब उसकी शुरुआत होगी। Right? Same way, you have to be watchful for that. और हमें जो है उसको देखते रहना Same चाहिए। way, Paul gave example of thief and a woman in labor pain. और इसी प्रकार से पौलुस यहाँ पर उदाहरण को देता है, पहला वो चोर का उदाहरण देता है और दूसरा वो गर्भवती की पीड़ा का उदाहरण So देता we है। are not expected to exact pinpoint the date and hour. और हमें इस बात की उम्मीद नहीं लगाना है कि वो जो एग्जैक्ट समय है और वो तारीख है उसकी उम्मीद नहीं But लगाना, we are expected to be ready. पर हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि उसके आने के लिए हमें तैयार रहना है। So I will ask you one question. मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, If Jesus is coming now, अगर प्रभु यीशु क्रिस्त अभी आने वाले हैं, what it will cause you? तो वो आपको क्या करेगा? No, what you are means. What will be your response? तो आपका जो है उसके लिए प्रतिशत क्या होगा? Will you rejoice क्या आप आनंदित होंगे or do you will tremble और with fear? और क्या आप भयभीत हो जाएंगे? What will be your response? क्या आपका प्रतिशत क्या होगा? You have to answer yourself. आपको जो है खुद को उसका उत्तर देना है। Am I ready when Jesus comes? प्रभु यीशु क्रिस्त जब आएंगे क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? So we'll look for it. So there are, if you open 2 Peter, अगर हम दूसरा पत्रस को खोलते हैं, 2 Peter, there are many people who say the Lord has forgotten his promise. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर जो है उसकी वाचाओं को भूल गया है। Right? He said that I will come. Right? I will have make many mansions. I will take with you. Right? और वो इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा है कि मैं आऊंगा और मैं पर वो सब बातों को भूल गए। People means mock us that where is this? Where is the promise of the Lord? For 2000 years he is coming. और लोग जो है वो हमें थट्टों में उड़ाते हैं कि उसने जो वाचा बांधी थी वो कहाँ है, वो तो 2000 साल पहले ही आने But वाला do you था। know, by saying like that, पर क्या आपको पता है कि उस प्रकार के कहने के द्वारा they are fulfilling the prophecy.
तो वो जो है वो भविष्यवाणी को पूर्ण कर रहे हैं। Second Peter chapter 3 and verse 4. And saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से So था। the question is, where is coming? Where he means the what is that question? Where is the promise of his coming? तो प्रश्न ये है कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। Right? The people in the last time will say like this, where is his coming? और अंत के समय के जो लोग हैं वो इस प्रकार से कहेंगे कि वो कब आए, उसके आने के विषय की But प्रतिज्ञा by क्या है। saying they are fulfilling this verse. पर वो उनके उस कहने के द्वारा वो जो है इन वचनों को वो पूर्ण करेंगे। Right? But God has not forgotten his promise. पर परमेश्वर जो है अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल चुका नहीं है। See verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। So we are should go according to God's timetable. और हमें जो है वो परमेश्वर की टाइमिंग के हिसाब से चलना है। He is never late and he is never early. वो कभी भी देर नहीं करता है और वो कभी भी जल्दी नहीं करता He है। is always on his right time. और वो जो है वो हमेशा उसके सही समय पर होता है। Right, if you turn to book of Habakkuk, I have opened here, you can look here directly. Book of Habakkuk chapter 2 and verse 3. I will read, for the vision is yet for an appointed time, but that the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. हिंदी मध्ये काय दिले वर्स क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरे होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। Right, though it tarry, और वो उसमें समय होगा फिर भी wait for it, तो भी उसकी बाट जोते रहना है, because it will surely come, the Bible says, क्योंकि वो निश्चय पूरी होने वाली है and it will not tarry. और वो जो है वो उसमें रुकेगा देर नहीं. नहीं होगी। When he will come, he will not stop. वो जब आएगा तब वो रुकेगा नहीं, No one can stop him. कोई भी जो है उसे रोक नहीं पाएगा। We'll see in the second coming. So turn with me to Matthew chapter 16, sorry. Matthew chapter 16 and verse 2. So Jesus told to look at the world condition. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो इस संसार की जो स्थिति है उसकी ओर देखो। नहीं, हाँ, स्थिति, हाँ. So look at the world condition and compare that world condition to the scriptures. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि वो इस पृथ्वी की जो इस संसार की जो स्थिति है उसको देखो और उसकी तुलना वचनों के साथ करो। Right, do you know now suppose the clouds will come. क्या अगर उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अगर बादल आते हैं, Right, if clouds came, what do you expect? Rain. अगर बादल आते हैं तो हमारी उम्मीद क्या होगी कि वर्षा So होगी। by seeing you can predict what will happen. और देखने के द्वारा हम इस बात का तर्क लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। Same way the Pharisees also demanded that give us some sign. और इसी प्रकार से फरीसी लोग जो है वो चिन्हों की मांग कर रहे थे। Right, but what Jesus replied in verse 2, Matthew 16 verse 2, he answered and said unto them, when it is evening, ye say it will be fair weather, for the sky is red, and in the morning it will be a foul weather. Today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of times. और उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। So how you are going to know the coming of Jesus Christ is near? और किस प्रकार से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि यीशु क्रिस्त का जो आगमन है वो निकट है। Signs of time. वो कुछ समय के चिन्हों के द्वारा। Right, you have to look for that signs. और हमें जो है उन चिन्हों को देखना है। What are the signs for us, especially as born again believers? और हम जो नए सिरे से जन्मे मसीह लोग हैं, Second हमारे लिए वो Timothy. चिन्ह क्या है? If you go to 2 Timothy chapter 3, दूसरा तीमुथियुस, there are certain times mentioned in the letters of Paul.
उस समयों का उल्लेख पौलुस की पत्रियों में किया गया है। And verse 1, this know also, 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days perilous time shall come. पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। What are those times? Perilous times. और वो कौन सा समय होगा? तो वो कठिन समय होगा। Right? A difficult time, a dangerous time. और वो कठिन समय होगा। And that time is come. What is exactly going to happen in that day? और In वो those times, sorry. और वो समय में एग्जैक्टली जो है वो क्या होने वाला है? Verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Verse 4 पर क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। This is the condition of the world today. और ये जो है ये संसार की आज की परिस्थिति है। When you go outside, definitely you can find these people. और जब हम बाहर जाएंगे तो निश्चय ही हम इन बातों को देखेंगे। It tells us that we are in these times. और वो इस बात को बताता है कि हम वो समय में है। Verse 5 says, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शांति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। Like having a form of godliness. एक वो जो है वो भक्ति का भेष धारण Right? करेंगे। Outwardly they look very godly. और वो बाहरी तौर पे जो है वो एक ईश्वरीय रूप वो धारण करेंगे। Right? But they deny the power which is in Christ Jesus. पर जो यीशु ख्रिस्त की जो शक्ति है उसको वो नहीं मानेंगे। Right? The modern Bibles, they outwardly look very godly. और जो आधुनिक जो आजकल के जो बाइबल वर्जन से वो बाहरी तौर से बड़े Right? अच्छे They हैं। gave title easy to read, easy to understand, and all those और वो things. इस प्रकार से टाइटल देते हैं कि वो समझने में अच्छा है, समझने में सरल है और वो पढ़ने के लिए सरल है। But definitely they lack power. पर निश्चय ही उसमें वो सामर्थ नहीं If you है। see in verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. और परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। So that's how the labor pain increases gradually, right? और जो गर्भवती की पीड़ा होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाती So है। all these things and evil men shall wax worse and worse, will increase worse and और ये जो दुष्ट और बहकाने वाले और धोखा देने वाले ये जो लोग हैं ये बढ़ते जाएंगे। worse. See, the churches are dropping their standards. और हम देखते हैं कि आज की जो कलीसिया है उनकी जो उनका जो स्टैंडर्ड है वो नीचे गिर रहा है। Right? They are using corrupt Bibles. और वो जो है वो भ्रष्ट बाइबल को They यूज कर रहे are हैं। using worldly music, और वो जो है वो सांसारिक गीतों का उपयोग कर रहे worldly हैं। form of worship. और वो जो ये सांसारिक जो गीत है उनका उपयोग वो संगीत में कर रहे They हैं। are making sin and sinner comfortable in a church. और वो इस प्रकार से जो एक पापी व्यक्ति है उसको कलीसिया में एक कंफर्ट के तौर पर वो बना रहे हैं। Right? The sin should means what? Means the church should have a preaching of sin. और जो कलीसिया है उसमें पाप के विषय में प्रचार होना Because जरूरी the है, Bible exposes sin. क्योंकि वचन जो है वो पाप को खुला करता है। And if they use the other versions, अगर वो दूसरे वर्जन्स का उपयोग करते हैं what they have softened the tone of sin, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो पाप का जो वो टोन है उसको और मुलायम कर दिया so है, that the word of God will not speak to them sharply. कि परमेश्वर का वचन जो है एक शार्प के तौर पे उनसे बात नहीं So करेगा। only they have verse 5 having a form of godliness. और उन्होंने जो है सिर्फ बाहरी तौर पे जो है वो भक्ति का भेष If you धारण go किया to है। 1 Timothy chapter 4 and verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, see what times? Latter times. Some shall depart from faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devils. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। In the last time this will happen. और अंत के समय में ये सब बातें होगी। They will depart from faith. वो जो है वो विश्वास से बहक जाएंगे They will not read their Bible. और वो पवित्र शास्त्र को They will नहीं not पढ़ेंगे study. और वो अध्ययन नहीं They will not करेंगे come to church. और वो कलीसिया में नहीं आएंगे They will depart. और वो बहक जाएंगे। Why? Because they deny
क्यों? क्योंकि वो नकार करते They हैं will deny to push the false doctrine, और वो जो है जो झूठी शिक्षाएं हैं उनको दूर करने के लिए वो नकार the करते हैं। false prophets. जो जो झूठे भविष्यद्वक्ता है उनको दूर करने के लिए वो नकार करते हैं। Verse 2, speaking lies in hypocrisies, having their conscience seared with hot iron. Verse 2. और यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, Verse 3, forbidding to marry जो विवाह करने से रोकेंगे and commanding to abstain from meats. और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की See, आज्ञा देंगे। forbidding to marry. Marriage is an institution which God has established. और विवाह जो है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई संस्था है God never wants a man and a woman to be alone. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक पुरुष और एक स्त्री का अलग रहना। If you see in the cult Roman Catholic, अगर आप रोमन कैथलिक कलीसिया में अगर right, देखते हो there are nuns and there are fathers. वहाँ पर जो है वो नन्स है और वो फादर्स They are directly against this verse, और वो जो है वो इन वचनों के खिलाफ है। right? So Bible says we should marry. और वचन इस प्रकार से वचन कहता है कि हमें जो है विवाह करना जरूरी है। There are some conditions in cases some one person cannot marry, but God is the one has established the institution of marriage. और ऐसी कुछ परिस्थिति और ऐसी कुछ कंडीशंस है जिसमें Marriage पुरुष और स्त्री जो है वो विवाह नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर ने जो है वो विवाह की ये जो संस्था है उसे स्थापित किया So in है। the last time, many will go in that way. और अंतिम जो समय होगा बहुत से लोग इस प्रकार से बहक जाएंगे। If you go to Second Thessalonians chapter 2 and verse 3. Second Thessalonians chapter 2 and verse 3. Yeah, what? किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न होले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। So the Thessalonians people thought that they have missed the rapture. और थेसलोनिकिया की कलीसिया के जो लोग थे उन्होंने वो इस प्रकार से सोचते थे कि उन्होंने रैप्चर को मिस किया है Right, thinking that they have lost. और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि वो खो चुके हैं। But Paul told them परंतु पौलुस उनसे कहता है in verse 3, वचन 3 में, Second Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. और किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न होले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। When will that day come? और वो दिन कब आएगा? Whenever the Bible talks about day, और जब कभी भी वचन उस दिन के विषय में बात in करता है Old Testament, the day of the Lord, और पुराने नियम में प्रभु का दिन, it is talking about the second coming of Jesus तो Christ. वो जो है वो यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के विषय में बताता है। People say it's Lord's day means it's Sunday, और लोग प्रभु का दिन जो है वो लोग उसको इतवार का दिन but समझते हैं। whenever the Bible says the day of the Lord, परंतु जब कभी भी वचन कहता है कि प्रभु का दिन, it will be the second coming of Jesus. तो वो यीशु ख्रिस्त का दूसरा आगमन होगा। So day shall come first. Before the coming of that day, they shall be falling away of the first. और Verse और 3 में दे. वर्ष 3 ना, There should be falling away means there should किसी be रीति these times will come first. हाँ, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न होले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। You can just pay attention to how a church in the last days are responding to false doctrine. और हमें सिर्फ इस बात की ओर ध्यान देना है कि इस अंत के समय में कलीसिया जो है जो झूठी शिक्षाओं को किस प्रकार का प्रतिसाद देते हैं What are people's attitude towards false doctrine? और लोगों का जो विचार है वो झूठी शिक्षा की ओर किस प्रकार का है Right? How they will think. और वो किस प्रकार से सोचते हैं। Whenever they identify any false doctrine, और जब कभी किसी झूठी शिक्षा को वो ढूंढते हैं they will not care. तो वो जो है उसके विषय में सोचते They नहीं will say let it be. और वो कहते हैं कि रहने दो। Right? We are good at our place, and why we should create a chaos? और हम जो है हमारी जगह भले है और हम क्यों इन परिस्थिति में उलझे। Do you go to church to be edified, और get an understanding, हम कलीसिया में हम सुधरने के लिए जाते हैं or या to get entertained? और क्या हम उस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। Last day churches will be only for entertainment. और अंतिम समय के जो कलीसियाएं होंगी वो सिर्फ और सिर्फ वो 1 hour there will एंटरटेनमेंट be के a लिए होंगी। worship service and the other programs. Every
The church is filled with programs and programs. और कलीसिया में इस प्रकार से होगा कि उनमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम से भरा होगा And there's no time to Bible study, for prayer, and for the preaching. और वहां पर जो है वो किसी भी प्रकार से जो है बाइबल अध्ययन के लिए और प्रार्थना के लिए और प्रचार के लिए समय नहीं होगा। What this shows that these times are fulfilling, the prophecies और- of end times are fulfilling. और वो किस बात को बताएंगे कि जो अंतिम समय के विषय में जो भविष्यवाणियां की गई है वो पूरी होगी। Right, in the taking the world affair, if you go to Matthew chapter 24, Bible talks about the social as well as political conditions of the last days. और वचन जो है वो अंतिम समय के एक सोशल और पॉलिटिकल बातों के विषय में बताता है। Right, in the last days, what will be the political and social condition of the men? और अंतिम समय में जो है वो मनुष्य की एक सामाजिक और पॉलिटिकल उसकी स्थिति क्या होगी इसके Verse विषय में 6, वचन बताता Matthew है। 24 verse 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars, and see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but end is not yet. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। See, you have to understand what is God's plan. और यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की योजना क्या है। Right, do you know what all nations want now? और क्या आपको पता है कि सभी जो राष्ट्र है वो अभी क्या चाहते हैं? They want peace. और वो शांति को चाहते That's हैं। why you know the United Nations. और इसीलिए आपको जो पता है यूनाइटेड नेशंस That all nations are come together. कि सभी जो राष्ट्र है वो एक साथ आएंगे। But first there was war and rumors of war. पर उसके पहले क्या होगा, तो उनके बीच में युद्ध होगा और युद्ध की चर्चा You है। shall hear wars and rumors of wars. और वो जो है वो लड़ाई के विषय में सुनेंगे। We have World War I, World War II. और Right? और We वो have faced those two world wars. और हमने जो है वो दो जागतिक युद्धों को देखा है। But you know, there might be a World War III. We don't know. और क्या आपको पता है कि हो सकता है तीसरा युद्ध भी, But do you know what is God's plan? परंतु क्या आपको पता है कि परमेश्वर की योजना क्या God's है? plan that all nations should come together. और परमेश्वर की योजना है कि सभी जो राष्ट्र है वो एक साथ आना है। Right, and that is means they are coming together. और वो जो है वो एक साथ आ रहे हैं। Right, they are G20 and all. They are forming the union with each other. और G20 और इस प्रकार की जो परिषद है वो जो है वो एक साथ आने के लिए The तैयार same कर रहे हैं। as in Genesis chapter 11, the Tower of Babel, all people came together, right? और जिस प्रकार से उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो बेबीलोन टावर है उसमें जो है वो सब लोग एक साथ आते हैं। They wanted the one world religion, और वो चाहते हैं कि जो पूर्ण जागतिक रीति में एक ही धर्म होने the पाए, one world government. Sorry. और जो जागतिक जो संसार है उसमें एक ही प्रकार का So when सरकार होने पाए। all there will be one world government. और वो जो है पूरी जागतिक तौर पे जो है एक ही सरकार होने पाए। What will happen? Then there will establish a global peace. तो क्या होगा, तो एक जागतिक स्तर पर जो है वो शांति प्रस्तापित And होगी। if you see Zephaniah chapter 3 and verse 8, I will read here. Zephaniah chapter 3 and verse 8. Therefore wait ye upon me, said the Lord, until the day that I arise up to pray. Pray means to eat, to attack. For my determination is to gather the nations. What is God's determinations? To gather all nations, right? That I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger, for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो So जाए। God's intention is to bring them together. और परमेश्वर की यह इच्छा है कि वो उन सबों को हम वो एक साथ लेकर आए। That is what happened when they established the global peace. और ये तब होगा जब वो एक जागतिक तौर पर वो शांति को प्रस्तापित The कर man पाए। of sin. और जो पाप से भरा हुआ जो मनुष्य है। You know that now the Donald Trump is going after peace and peace. और क्या अभी हम देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो शांति के लिए वो बातें करते हैं। I am not saying that he will be antichrist or all. और मैं इस प्रकार से नहीं कह रहा हूँ कि वो मसीह विरोधी है, But और there are some things to consider. परंतु कुछ बातें हैं जो हम कह सकते हैं। But I will tell you what will happen after we are gone up. और मैं आपको बताऊंगा कि हम ऊपर जाने के बाद जो है, हम उठाए लिए जाने के बाद जो है वो क्या किन In बातें this होगी, 7 year, और वो 7 वर्षों में what will happen exactly? तो एग्जैक्टली क्या होगा ये हम When देखेंगे। we will go up,
और जब हम ऊपर जाएंगे there will be a global peace. तो वहां पर जो है वो जागतिक तौर पर एक शांति होगी। I mean, just now what we read that God's plan is to gather everyone और परमेश्वर की ये योजना है कि सबों को एकत्रित करे and to burn them, और उनको भस्म कर दे, right, to जला दे destroy them. और उनका नाश कर दे। But the chosen one, which we are saved, पर will be taken up जो first. चुने हुए हैं और जो उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं उनको अलग करे, That is rapture. और वो जो है वो रैप्चर होगा। Then when we are gone up, the global peace will come. और जब हमारा रैप्चर होगा तब जो है वो जागतिक शांति Then आएगी। there will be a 7 years treaty, और उसके बाद जो peace है treaty और उसके बाद जो है वो 7 वर्षों के लिए एक शांति होगी। in the Middle East. Middle East means where the Israel and all those are, na? जो There will be a peace treaty, that there will be no war. और जो इजरायली राज्य है और उन भागों में जो मिडिल ईस्ट का जो भाग है उनमें जो है वो 7 वर्षों के लिए शांति होगी। It means the Israel will be allowed to in their land and all. और जो इजराइल लोग हैं उनकी भूमि पर उनके जो है वो अनुमति रहेगी। Then what will happen? Suddenly the peace will be broken और क्या होगा कि जो अचानक से जो है वो शांति टूट जाएगी and there will be war. और वहां पर जो है वो युद्ध All होगा। this we'll study in the book of Revelation. और ये सब बातें जो है ये सब बातों का अध्ययन हम प्रकाशित वाक्य में करेंगे। And in the mid tribulation, in the middle of the tribulation, और उस महासंकट के एग्जैक्ट बीच में this man of sin जो पाप का जो मनुष्य है will be assassinated. वो जो है वो वहां पर As the Antichrist will be killed. और जो मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट जो शैतान है वो मारा जाएगा। But by the devil he will be rise again from the dead. पर वो शैतान के द्वारा वो जो है वो फिर से जी उठेगा। Right, and then the rest of the 3.5 years, और जो बचे हुए जो 3.5 साल है what will happen? तो वहां पर क्या होगा? There will be a great tribulation. तो वहां पर जो है वो एक महासंकट का समय The होगा। entire thing is called tribulation. और जो पूरा जो समय है उसको महासंकट कहा But जाता है। this last 3.5 years परंतु जो आखिरी जो 3.5 साल है will be a great tribulation. तो वो एक बड़ा महासंकट होगा। That is also called Daniel 17th week. और उसको जो है दानियल का 17वां सप्ताह भी कहा जाता है। Right, and at the end of the second means the tribulation, और वो उस महासंकट के अंत में there will be the second coming of Jesus Christ. वहां पर जो है यीशु क्रिस्ट का दूसरा आगमन होगा। Turn with me to book of Revelation. आइए मेरे साथ निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की Revelation पुस्तक chapter 19. Revelation chapter 19 and verse 20. Read. वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। So we'll read it. After this tribulation, उस महासंकट के बाद में at the end of tribulation, I mean, और वो महासंकट के अंत there में will be the second coming of Jesus Christ. तो प्रभु यीशु क्रिस्ट का जो है दूसरा आगमन होगा। And then there will be 1,000 years. और उसके बाद जो है 1000 वर्ष होंगे 1,000 years Jesus Christ will reign on earth. और 1000 वर्षों के लिए यीशु क्रिस्ट इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। So this is in short what I am telling, that signs of times. और ये जो है मैं संक्षिप्त में वो समयों के चिन्हों के विषय में बता And रहा that signs of times are coming near. और वो जो समयों के जो चिन्ह है वो निकट आ रहे हैं। And in short, I have told you what will happen in tribulation. और संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि महासंकट के समय में क्या होगा। So like I said, the second coming of Jesus Christ in two parts. जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो दूसरा आगमन है वो 2 भागों में One is विभाजित है। rapture and other is revelation. और पहला जो है वो रैप्चर है और दूसरा जो है वो रेवलेशन। Right, what is rapture? रैप्चर क्या है? Rapture will be, you will be taken up. कि आप Like ऊपर this. उठा लिए जाओगे Right, you will be taken up. और आप ऊपर उठा लिए जाओगे। Jesus Christ is not coming on earth. और प्रभु यीशु ख्रिस्त वहां पर पृथ्वी पर नहीं आएंगे। He is inbuilt in the cloud. और वो जो है वो बादलों पर रहेंगे। Right, what the other word for rapture? There is no word rapture in the Bible. और ये जो रैप्चर जो शब्द है वो बाइबल में वो नहीं है। But in book of Titus, परंतु तीतुस की पुस्तक में in verse chapter 2 verse 13, और दूसरे अध्याय उसके 13 वचन में what the Bible says, it is called a blessed hope. और वो वहां पर वो उसे धन्य आशा कहा गया है। And in 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, it says gathering of together. और दूसरा थेसलोनिकियों की पुस्तक में उसको जो है वो सबों को एकत्रित करना कहा गया है। Right, in Romans, you open in Romans chapter 8:23, what it says,
the changing of our body. और रोमियो उसके 8 और 23 वचन में कहा गया है कि हमारे जो शरीर है वो बदल जाएंगे। Right, means at rapture our body will be changed. और वो रैप्चर के समय में हमारे जो शरीर है वो बदल This जाएंगे। is not what I have thought and what I am saying, my और imagination. जो ये जो है ये मेरे विचार नहीं है और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, This is what Romans 8:23 says. पर ये जो है ये रोमियो उसका 8वां अध्याय और 23 वचन कहता And है। in Philippians also. और फिलिपियो की If you पुस्तक open में 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16. अगर आप खोलते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय Verse 16. Chapter 4 verse 16. चैप्टर 4 अच्छा So चौथा the अध्याय। rapture, there will be a three voices, sorry. और जब रैप्चर होगा तब 3 प्रकार की आवाज होंगे There will be a shout, और वहां पर जो है वो चिल्लाना होगा। then there will be a voice of an archangel, और उसके बाद जो है वो उसके बाद प्रधान दूत का वहां पर शब्द सुनाई and there देगा will be a trump. और उसके बाद जो है वहां पर तुरही फूकी जाएगी। So if you see verse 16, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, right? With the voice of an archangel and with the trump of God, and dead in Christ shall rise first. और क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। So those three voices are there: a shout, a voice of an archangel, and trump. और वो ललकार और वो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। When do you shout? और आप कब चिल्लाते हो? When you are afraid, जब आप भयभीत होते हो or when you are rejoicing, right? और क्या जब आप वो आनंदित होते हो? So obviously Jesus is shouting, rejoicing. और He is not afraid of anything. और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है वो आनंदित है और वो उत्तेजित है। वो So I think that this shout will be of Jesus. और हो सकता है मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि वो जो ललकार है वो जो चिल्लाना है वो यीशु ख्रिस्त Then का the voice of archangel. और उसके बाद जो है प्रधान दूत का जो शब्द सुनाई देने वाला There is है। only an archangel mentioned in the Bible in book of Jude, and verse 1 is Michael. और वो जो दूत का जो उल्लेख किया गया है वो सिर्फ मिका में Michael. और No, it's in mention. You just say Michael is the one mentioned in this book. और जो माइका है उसमें वो उसका उल्लेख किया गया है। So what will happen? तो क्या होगा? I don't know what Michael will announce. और मुझे ये नहीं पता कि जो माइकल है वो किस बात का वो अनाउंसमेंट करेगा। Definitely there will be some announcement. और हम देखते हैं कि हो सकता है वहाँ पर वो कुछ बातों की घोषणा वहाँ पर होगी। Revelation chapter 4 talks about the rapture also. और प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय जो है वो रैप्चर के How विषय में John was बताता है। raptured, same way we are also going to rapture. और जिस प्रकार से यूहन्ना उठा लिया गया उसी प्रकार से हम भी उठा लिए जाएंगे। Revelation chapter 4 and verse 1. And after this I looked, and behold, a door was opened in heaven. A voice, the voice of which I heard was as it were of a trumpet talking to me. See, voice is how? A trumpet talking to me, which saith, Come up hither, and I will shew thee things which ye be hereafter. और इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुनाता वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक What is है। that word mentioned? Come up hither. और यहाँ ऊपर आ जा, Right? Come up hither is mentioned 3 times in the Bible. और यहाँ ऊपर आ जा ये जो शब्द है ये वचन में 3 बार उसका उल्लेख किया Maybe गया that है। voice we will hear, Come up hither. और हो सकता है कि वो आवाज वापस सुनाई देगा कि यहाँ ऊपर आ जा। And John 10:3 says he will call us by his name. और यूहन्ना 10:3 में वो कहा गया है कि वो हमारा नाम पुकार कर वो हमें Right? पुकारेगा। His sheep he calls his by name. और उसके जो भेड़े हैं उनको वो उनके नामों को लेकर वो पुकारेगा। Also in that when the trumpet will sound, और जब वो तुरही का शब्द सुनाई it देगा says when the trumpet sound will begin, the dead in Christ shall rise. और जो तुरही फूकना जब शुरुआत होगा जो मसीह में मृत लोग हैं वो पहले जी उठेंगे। And at the last trump which we remain, which are alive, will be caught like और this. जब वो तुरही फूकने का जो अंत का समय होगा उस समय में जो हम जीवित लोग हैं हम उठा लिए जाएंगे। That means there will be some people who will not experience death. और वहाँ पर कुछ लोग होंगे जो लोग मृत्यु का जो है वो अनुभव नहीं ले पाएंगे। Right? And some which are dead will be rise again. और जो मसीह में जो मृत होंगे वो जिलाए जाएंगे। So our new body is reserved in heaven.
और हमारा जो नया शरीर है, महिमामय शरीर है, वो स्वर्ग में वो रिजर्व है। When you get saved, what happens? और जब हमारा उद्धार होता है तो Your क्या soul होता है? and spirit get saved, right? हमारा जो जीव और हमारा जो आत्मा है वो बचाया But जाता when है। you get raptured, your body will be saved. परंतु जब हमारा रैप्चर होता है तब हमारा शरीर बचाया If जाता you है। don't believe me, you go home and read 2 Corinthians chapter 5:4, Philippians chapter 3:20, and 1 John 3:2. अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो आप घर जाकर दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 4वां वचन और फिलिपियों उसका 3रा अध्याय 20वां This- वचन और पहला यूहन्ना उसका 3रा This अध्याय और corrupt दूसरा वचन body will पढ़िएगा। be changed. और हमारा ये जो शरीर है ये बदल जाएगा। In especially here it is written, we will be like Jesus Christ. और वह यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हम जो है वो यीशु ख्रिस्त के समान होंगे। So God will give you a new body at the rapture. और परमेश्वर जो है वो रैप्चर के समय में एक नया शरीर हमें देने वाला है। But now what is God giving? परंतु अभी जो है वो परमेश्वर क्या दे रहा God है? is working in you now परमेश्वर अभी हमारे अंदर वो कार्य कर रहा to है। transform you to the image of Christ. तो हमें यीशु ख्रिस्त के चरित्र उस यीशु ख्रिस्त के चित्र के समान हमें परिवर्तन करने के लिए Something is happening inside you as you read the Bible, study the Bible. He is conforming you to the image of Christ. और जब कभी भी हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते थे कुछ तो हमारे शरीर के अंदर होता है कि जो हमें यीशु ख्रिस्त के समान वो बनाते चले जाता है। And then you will definitely get outside the different body. और उसके बाद जो है डेफिनेटली हम बाहरी तौर से जो है वो अलग शरीर को But प्राप्त the करेंगे। work starts the moment you get saved. पर वो जो कार्य है वो तभी शुरुआत हो जाता है जिस समय में हम उस पर विश्वास करते हैं। So the rapture will be a joyful moment. और जो रैप्चर होगा वो एक आनंद का क्षण होगा। Right? It will be a joyful. और वो जो है वो आनंद से भरा हुआ क्षण होगा। But the revelation, परंतु जो रेवलेशन है, what is revelation? और वो रेवलेशन क्या है? Revelation means that Jesus will come on earth. और उसका अर्थ ये है कि यीशु ख्रिस्त जो है वो पृथ्वी पर आएंगे। In before the revelation means the tribulation will start. और वो उसके पृथ्वी पर आने के पहले जो है वो महासंकट का समय होगा। The tribulation will be not a joyful. और जो महासंकट का समय होगा वो आनंद की बात नहीं होगी। If you open Revelation chapter 17. See, at first, if you don't understand all this, पहले आप इन बातों को समझने नहीं पाएंगे। no, if you don't understanding now, अगर अभी आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे it's हो okay. But as we study, you will understand by and by. तो वो ठीक है, पर हम जिस प्रकार से आगे की ओर हम पढ़ते जाएंगे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। Revelation chapter 17 and verse 14. What the Bible said, and these shall make war with the Lamb. See, the Antichrist and his army shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is the Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। So there will be a war at this wha- second coming. वहाँ पर जो है वो युद्ध होगा। If you go Revelation 19 and verse 19. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. So there are two armies. और फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दो सेनाएं हैं, The army of Antichrist and the army of Jesus. और वो है वो शैतान की एक सेना होगी और यीशु ख्रिस्त की एक सेना है। So who is the army of Jesus? तो यीशु ख्रिस्त की जो सेना है वो कौन है? Revelation chapter 19 and verse 7. Right, so I have not told you, just pay attention here. When we are gone up, the rapture, और जब हम ऊपर उठा लिए जाएंगे right, there will be a judgment. तो वहाँ पर जो है वो न्याय होगा, That will be a judgment seat of Christ. और वहाँ पर जो है वो यीशु ख्रिस्त का वो न्याय होगा। यीशु Now, ख्रिस्त हमारा न्याय करेगा right, we will be judged. और हमारा जो है वहाँ पर न्याय होगा। And after that, there will be a marriage. और उसके बाद जो है वहाँ पर विवाह होगा। And after marriage, what is after marriage? और विवाह के बाद क्या होगा? What is reception, right? और उसके बाद जो है वो रिसेप्शन होगा, There will be reception on earth. और उसके बाद जो है वो पृथ्वी पर रिसेप्शन So होगा, before reception, there will be a battle. और वो रिसेप्शन के पहले जो है वो युद्ध होगा। See, Revelation chapter 19 and verse 7. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.
आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया The है। wife had made herself ready. और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Bible, we are the wife of Jesus Christ, और the हम जो है bride वो of Christ. यीशु क्रिस्ट की हम दुल्हन है। Are you making yourself ready for the क्या marriage? आप खुद को उसके लिए तैयार कर रहे हो? Why women wear white dress in the marriage? क्यों जो स्त्री है वो विवाह में सफेद वस्त्र को धारण करती है? Do you know why? क्या आपको पता है क्यों? Why? एक Purity. शुद्धता She को is दिखाता pure, right? Obviously. वो शुद्धता को दिखाता है। Because see, when you pass this judgment और जब आप इस न्याय को पास करोगे and go to the marriage of Lamb, और जब वो मेमने के विवाह में आप you सहभागी will be होंगे, a pure. तो आप जो है आपका वापस शुद्ध होना You will जरूरी be है। past that judgment, right? आपको जो है वो न्याय से बाहर निकलना जरूरी है। No, you will be past, and by passing judgment, you will become pure. और वो न्याय से बाहर निकलने के बाद हम जो है वो शुद्ध हो जाएंगे और उसके बाद वो विवाह में हम सहभागी होंगे। So you should get ready for marriage. और इसीलिए हमें जो है वो विवाह के लिए हमें तैयार Verse 8, रहना जरूरी है। and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Right? So what are the linen? और वो मलमल क्या है? White. वो शुभ्र है। What does it say? The righteousness of saints. और वो क्या कहता है कि वो पवित्र लोगों के धर्म के काम कहता है। So after marriage there will be reception, और but वो before reception there will be a fight. और वो विवाह के बाद जो है वो रिसेप्शन होगा और वो रिसेप्शन के पहले युद्ध होगा। Verse 11, and I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. 11. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. और उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उस पर एक नाम लिखा है और जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। This is talking about when Jesus will come down. और ये जो है ये प्रभु यीशु ख्रिस्त जब नीचे आएंगे ये उसके विषय में बात कर रहा है। Right, and see verse 13, and he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the word of God. और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। And the armies which were in heaven followed him upon the white horses, and clothed in fine linen and white and clean. और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। Who is this army? और वो जो है वो सेना कौन है? Why we all did this? To और ये- identify that army is the bride of Christ. और हम ये ढूंढने के लिए इस बात को पढ़ रहे हैं कि जो स्वर्ग की जो सेना है वो परमेश्वर की वो दुल्हन है। So we will be coming down with him. और हम जो है हम उसके साथ नीचे की ओर आएंगे। Right. So in Revelation chapter 20 and verse 1, and when we come down, and there will be a battle of Armageddon, that is called, and what will happen at the first 1,000 years, means what will be the beginning of 1,000 years. Verse 1, and I saw an angel come down from heaven, having the key of bottomless pit and a great chain in his hand. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। So what I said, that before, means the coming down, before the starting of 1,000 years, और मैं क्या बता रहा हूँ कि वो 1000 वर्ष शुरुआत होने के पहले the devil will be bound in the bottomless pit. और वो जो है जो शैतान जो है वो बॉटमलेस पिट में उसको उस कुंड में वो उसको बांध दिया Verse जाएगा। 3, and verse 3 says, and cast him into bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till 1,000 years should come fulfill, and after that he must lose a little season. और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर So we खोला see जाए। that for 1,000 years the devil will be not on earth. और हम देखते हैं कि 1000 वर्षों के लिए शैतान जो है वो पृथ्वी पर नहीं होगा There will be Jesus Christ और वहां पर जो है वो यीशु ख्रिस्त होंगे and all the people, और उसकी सब सेना उसके and और we will बाकी लोग reign होंगे with him. और हम जो है हम उसके साथ राज्य करेंगे Right? There will be other people also. और वहां पर जो है दूसरे लोग भी होंगे। But at the end of 1,000 years, the devil will lose.
पर वो जो 1000 वर्षों के अंत के समय में जो है वो शैतान फिर से खुला Bible कर says दिया there जाएगा। will be some people who will be against Jesus Christ, और वहाँ क्योंकि वहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो यीशु क्रिस्त के विरुद्ध में होंगे and they will come against Jesus, but the fire will come down from heaven and earth will get destroyed. पर और तब क्या होगा तो एक स्वर्ग से जो है वो आग बरसेगी और ये जो जो स्वर्ग और जो पृथ्वी है वो नष्ट की In जाएगी। Revelation chapter 27 to 10, if you read, you will get that. और प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में अगर हम वो पढ़ते हैं उन बातों को तो उन बातों को आप देख नहीं पाएंगे। And then there will be a great white throne judgment. और उसके बाद जो है वहाँ पर एक महान शुभ्र न्याय होगा। Right? If you see the other video of 7 judgments, और अगर आप दूसरा वीडियो देखते हो 7 न्यायों के विषय में, in the entire Bible, I have talked about the 7 judgments. और पूरे पवित्र शास्त्र में 7 न्याय के विषय में हमने वहाँ पर You बताया can है। get that detail from that. Okay? और आप जो है आप डिटेल्स में वहाँ से आप ले So सकते I हैं। have told you the second coming of Jesus Christ तो मैंने आपको यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के विषय में is बताया। divided in 2 parts, rapture and revelation. 2 भागों में वो विभाजित है, रैप्चर और रेवलेशन। Revelation meaning that the tribulation and the coming of Jesus. और रेवलेशन उसका जो अर्थ है वो महासंकट और यीशु क्रिस्त का आना है। And but rapture is before the tribulation. परंतु जो रैप्चर है वो महासंकट के पहले का But there are बात है। people who think rapture will be after 1000 years or before tribulation, means after tribulation. और लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जो रैप्चर है वो 1000 वर्षों के बाद होगा या फिर वो महासंकट के बाद होगा। But what the Bible says, it will be before tribulation. परंतु वचन कहता है कि वो महासंकट के पहले होगा। And there are, we'll talk about post tribulation and post millennium theories. और उसके बाद जो है हम महासंकट के बाद की बातें और 1000 वर्षों के बाद की बातें जो है वो बाद में उसका अध्ययन करेंगे। Okay, so what we have understood, what are we expected? तो आज जो है हम किन बातों को हमने समझा है और किन बातों की उम्मीद जो है वो हमें रखना है। We are not expected to find out hour and date, और exact moment. हमें इस बात की उम्मीद नहीं रखना है और हमें उस तारीख को और उस समय को नहीं ढूंढना है। We are to be ready. और हमें जो है वो हमें तैयार रहना है। If you see Revelation chapter 22 and verse 20. He which testified these things said, surely I will come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। Surely I come quickly. और वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। So we should be on God's timetable and not our timetable. और हमें जो है हम परमेश्वर के समय के हिसाब से चलना है परंतु हमारे समय के हिसाब से नहीं। But we should be watchful. परंतु हमें जो है हमें देखते रहना जरूरी As है। a thief cometh in the night and as labor pains. और जिस प्रकार से चोर रात में आता है और वो गर्भवती की पीड़ा कब शुरू होती है उसे पता नहीं रहता। Right. So we should be watchful. तो उसी प्रकार से जो हमें जो है हमें देखते रहना So जरूरी है। that is how we will get ready. और इसी प्रकार से जो है हम तैयार रहेंगे। And there are a lot of things, but for basic discipleship, this is enough. और ऐसी बहुत सी बातें हैं परंतु एक बेसिक डिसाइपलशिप की जो शिक्षाएं है उसके लिए इतना जरूरी। If you have not understood काफी है। anything, अगर आप इन बातों में से कुछ भी नहीं समझे but होंगे, remember, rapture is different and revelation is different. परंतु इन बात को आप ध्यान में रखें कि जो रैप्चर है वो अलग है और जो रेवलेशन है उसका In आना जो rapture, है वो अलग Jesus will be on clouds. He will, और come, he will not rapture come के- on earth. but in रैप्चर के clouds. समय में यीशु क्रिस्त जो है वो बादलों पर होंगे, वो पृथ्वी पर We will be नहीं taken आएंगे up. We will be taken up. और हम जो है हम ऊपर उठा लिए But जाएंगे। in the second coming, पर- he will come on earth and rule on earth. परंतु दूसरे यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के समय में वो पृथ्वी पर आएगा और वो 1000 वर्षों के लिए यहाँ पर राज्य करेगा। If you just one verse we'll read, Zephaniah chapter 1 and verse 15. That day is the day of wrath, the second when the Jesus will come, a day of trouble and a day of distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. These terrible things Bible has described. Right now, verse 15. वह रोज का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। Rapture will be joyful, जो रैप्चर है वो आनंद का समय but होगा, tribulation and the coming of Jesus Christ will be not joyful. परंतु जो महासंकट का समय है और उसका जो आना है वो आनंद का समय नहीं होगा। So why we should study this? और क्यों हमें इन बातों का अध्ययन करना To जरूरी है? make ourselves ready. तो हमें खुद को तैयार करने के लिए
In Revelation, we have read the wife made herself ready. और प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा है कि जिस प्रकार से दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, So you, as a born again believer, should और be ready. और हम To जो be नए taken up. सिरे से जन्मे मसीह, हम उसके लिए तैयार होना जरूरी है। Okay, we'll stop.